Center of mass. It is observed that center of mass of a system moves as if its entire mass is confined at that point. हम देखेंगे जो सेंटर होते हैं mass किसी system का वो move करते हैं जब entire mass is confined at that point. A force applied at such point in body doesn't produce any torque. जो force उस point पर apply होती है वो कोई torque produce नहीं करती. जो body है वो in direction of net force move करती है. Consider a system of two particles A and B जो एक light rigid rod से connect होती हैं. Let O is a point anywhere between A and B. O एक ऐसा point है जो A और B के दरमियान में कहीं भी है such that the force इस पर apply हो रही है. अगर system direction of force move करेगा without rotation तो point O center of mass होगा system का. Let the force be applied near the lighter particle. हम force को lighter particle की तरफ apply करते हैं तो system move भी होता है rotate भी होता है. और अगर force हम heavier particle पर apply करें तो system moves भी होगा और rotate भी होगा. Center of mass of system is such a point जहाँ applied force causes the system to move without rotation. एक ऐसा point है जहाँ when applied force causes the system to move without rotation. What is center of gravity? A body is made up of large number of particles. एक body जो है काफ़ी ज़्यादा particles से मिलकर बनती है. Earth attracts each of these particles vertically downward toward its center. Earth जो है इन तमाम particles को downward attract करती है. जो pull है Earth की इन particles पर वो उसके weight के बराबर है. तो ये forces जो है act on particles of body almost parallel है. जो resultant है इन तमाम parallel forces का एक single force है that is equal to the weight of body. A point where this resultant force acts vertically towards center of earth is called center of gravity. Point जहाँ पर resultant force जो है act करती है towards center of earth उसे कहते हैं center of gravity. A point where the whole weight of body appears to act vertically downward is called center of gravity of body. Useful है ताकि location find की जाए center of body, gravity of body. Center of gravity of an irregular shaped thin lamina. A simple method to find center of gravity जो है ना is by use of plumb line. Plumb line consists of small metal bulb supported by string. Plumb line में एक metal bulb होता है जो कि ring से support हो रहा होता है. When bulb is suspended freely by string, जब bulb को freely suspend किया जाए string से तो it rests along vertical direction due to its weight acting vertically downward. तो वो rest करता है vertical direction में क्योंकि weight जो है नीचे की तरफ act कर रहा होता है. In this state, center of gravity of bulb is exactly below its point of suspension. जो center of gravity है bulb का वो exactly below है its point of suspension. Take an irregular piece of cardboard. एक irregular piece cardboard का लेते हैं उस पर holes बनाते हैं A, B और C इसके edges के दरमियान में के साइड पर. Fix a nail on wall. एक nail wall पे fix करते हैं. उस कार्डबोर्ड को उस नेल पर सपोर्ट करते हैं किसी भी एक होल से तो कार्डबोर्ड जो है फ्रीली स्विंग कर सके अबाउट ए. कार्डबोर्ड विल कम टू रेस्ट विद सेंटर ऑफ ग्रेविटी जस्ट वर्टिकली बिलो द नेल. जो वर्टिकल लाइन ए है कैन बी लोकेटेड यूजिंग अ प्लम्ब लाइन हंक फ्रॉम द नेल. हम वो लाइन मार्क करेंगे उस कार्डबोर्ड पर और रिपीट करेंगे बाय सपोर्टिंग द कार्डबोर्ड फ्रॉम होल बी. जो लाइन बी वो इंटरसेक्ट करेगी उसे एक पॉइंट जी पर. इस तरह से हम दूसरी लाइन्स डिफरेंट होल से बनाएंगे और जो कॉमन पॉइंट आएगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कार्डबोर्ड का. कपल. व्हाट इज कपल? व्हेन अ ड्राइवर टर्न्स अ व्हीकल ही अप्लाइज फोर्सेस दैट प्रोड्यूस अ टॉर्क. जब एक ड्राइवर व्हीकल को टर्न करता है तो फोर्स अप्लाई करता है जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करती है. दिस टॉर्क टर्न्स अ स्टीयरिंग व्हील. ये टॉर्क जो है स्टीयरिंग व्हील को टर्न करता है. दीज फोर्सेस एक्ट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ स्टीयरिंग व्हील. ये फोर्सेस जो है स्टीयरिंग व्हील के ऑपोजिट साइड्स पर एक्ट करती हैं और इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में लेकिन ऑपोजिट होती है डायरेक्शन में. ये टू फोर्सेस कपल बनाती हैं. अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग सेम लाइन. एक कपल बनता है दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है जो कि सेम मैग्नीट्यूड की होती हैं लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं होती, मतलब सेम लाइन में नहीं होती. अ डबल आर्म स्पैनर इज यूज्ड टू ओपन अ नेट. जो इक्वल फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ जो है are applied on ends A and B in opposite direction. These forces form a couple that turn the spanner about point O. जो torque produce हो रहा है इस couple से
it has same direction. So total torque produce होगा that will be F into OA plus F into OB. So F is equal to F multiplied by AB. What is equilibrium? Newton's first law of motion tells us that a body continues its state of rest or uniform motion in a straight line if no resultant or net force acts on it. जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि एक बॉडी स्टेट पर तब तक रहती है, ये यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहती है लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, जब तक कोई नेट फोर्स एक्ट ना हो. फॉर एग्जांपल एक बुक जो टेबल पर है तब तक रहेगी जब तक कोई नेट फोर्स नहीं एक्ट होगी. अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट. बॉडी तब तक इक्विलिब्रियम है जब तक कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं हो रही. अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम विल रिमेन एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लेट्स डिस्कस सम कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम. हमने देखा कि बॉडी जो रेस्ट पर यूनिफॉर्म मोशन में वो तब तक इक्विलिब्रियम में जब तक रिजल्टेंट फोर्स जीरो है. तो फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इट मस्ट सेटिस्फाई सम कंडीशंस. सो देयर आर टू कंडीशंस फॉर अ बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम. फर्स्ट कंडीशन क्या है? अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. एक बॉडी जो है फर्स्ट कंडीशन तब सेटिस्फाई करेगा जब उसकी तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा. लेट नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 डॉट F1 ये बॉडी पर एक्ट करें. जब इसका सम जीरो होगा, जो कि एक सिंबल ग्रीक लेटर सिग्मा कहते हैं, उसे रिप्रेजेंट हम करते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन जो है कैन बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट. अगर वो जीरो होगा तो फर्स्ट लॉ जो है वो अटेन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाइंग ऑन टेबल और पिक्चर हैंगिंग ऑन वॉल, ये रेस्ट पर है और सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की. एक कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल. अ ब्लॉक ऑफ वेट गिवन है, इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड, टेंशन फाइंड करनी है. सम ऑफ एफ एक्स जीरो है, टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू डब्ल्यू है. सेकेंड कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की? फर्स्ट कंडीशन जो इक्विलिब्रियम की डजंट इंश्योर दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. तो ये क्लियर है कि कोई इस एग्जाम्पल से कंसिडर अ बॉडी पुल्ड बाय फोर्सेस F1 और F2. दोनों फोर्सेस इक्वल है लेकिन ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट इनका जीरो है. लेकिन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बॉडी को रेस्ट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. तो हम फोर्सेस की लोकेशन चेंज करते हैं. बॉडी अब इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऑल द फर्स्ट कंडीशन स्टिल सेटिस्फाइड है क्योंकि बॉडी में टेंडेंसी को रोटेट कर सके. सो दिस सिचुएशन डिमांड्स अनदर कंडीशन. दिस इज कॉल्ड सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. अकॉर्डिंग टू दिस बॉडी सेटिस्फाइज सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन रिजल्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज जीरो. बॉडी जो है सेटिस्फाई करती है सेकेंड कंडीशन इक्विलिब्रियम का जब टॉर्क उसके ऊपर जीरो हो. मैथमेटिकली सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू जीरो. एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं. एक यूनिफॉर्म रॉड, इसकी लेंथ गिवन है, इज प्लेस्ड ओवर अ वेज एट 0.5 मीटर फ्रॉम वन एंड. जो OA 0.5 है, फोर्स 100 न्यूटन की अप्लाई हो रही है. हमने वेट रॉड का फाइंड करना है रिएक्शन वेज का. AG इज इक्वल टू BG. ठीक है, तो 0.75 नैनोमीटर है, वो सॉरी मीटर है. और जो OG है वो होगा AG माइनस AO, इट इज़ 0.25 मीटर. वेट और हमने R फाइंड करनी है. हम टॉर्क फाइंड करेंगे, टॉर्क के फॉर्मूले से हम वेट फाइंड कर लेंगे और फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की अप्लाई कर देंगे.